Hey guys, welcome to my channel. My name is Pushir Dolakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all on my YouTube channel. I wish you a very happy Janmashtami. ये वीडियो जो है वो एक दिन लेट आ रहा है। जन्माष्टमी कल थी लेकिन कल मैं वीडियो डाल नहीं पाया फॉर सम रीज़न। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही वीडियो डाल दिया जाए बिकॉज इन माय ओपिनियन कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा इज़ certainly not a character to be celebrated on particular one day. I think it's a character, it's a Lord Krishna who I think has been celebrated over the years for every day. हम सब के दिल में बसा है, हम सब की I think जीवन का हिस्सा है। और मुझे एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया किसी ने आज एक व्हाट्सएप के ऊपर कि जो लॉर्ड कृष्णा है उनके बारे में वो मैसेज था कि आज जो मतलब जन्माष्टमी है उसके बारे में था कि आज जो है वो उस व्यक्ति का जन्मदिन है या उस भगवान का जन्मदिन है जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअल गुरु है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियन है, सबसे बड़े चाणक्य है या एक तरह से पॉलिसी मेकर है, दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त है, दुनिया के सबसे अच्छे मेंटोर है, सबसे अच्छे शिक्षक है। आज जन्मदिन है लॉर्ड कृष्णा का। और ये बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने अगर महाभारत थोड़ी सी भी पढ़ी है तो हमें पता है कि लॉर्ड कृष्णा जो है वो कितना एक तरह से अपना साम्राज्य है वो संभाले हुए थे और किस तरह से उन्होंने सारथी की भूमिका निभाई महाभारत के अंदर अर्जुन के लिए। सो एनीवे वो तो आई थिंक बात डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो भी एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु का देखने वाले हैं जो कि यूथ में काफ़ी पॉपुलर है, लोग काफ़ी उनको समझते हैं, सुनते हैं। आज हम वीडियो देखने वाले हैं सदगुरु जी की। आज जो वीडियो है वो उनकी जन्माष्टमी के ऊपर है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को देख लिया जाए। तो इस वीडियो का टाइटल जो है वो है जन्माष्टमी स्पेशल बाय सदगुरु, हाउ टू बिकम लाइक कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। सो देखना पड़ेगा कि क्या है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप भी मेक श्योर कीजिए आप उनकी चैनल को विजिट करें। साथ में अगर मेरी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए, अगर आपको ये पसंद आता है तो रिएक्शन को लाइक ज़रूर करें, पूरा देखिए इस वीडियो को, और चैनल को अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो या लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। When we say Krishna, most people only think of butter and girls and flute. From 16 to 21, he lived as a brahmachari, he took sannyas, lived as a brahmachari, went through severe sadhana. Everything that he wanted to create failed with Kurukshetra war, but we call him Lord because through all this he was playful, untouched by a terrible reality, a terrible drama that's playing around you. This you can also do, isn't it? Today is Krishna Janmashtami. When we say Krishna, there are too many misconceptions about Krishna. When we say Krishna, most people only think of butter and girls and flute. Yes? That's true. But we must understand that his butter business was all till he was 6 years of age or 8 years of age. So all this girl business only till he was 16 years of age. At the age of 16, when his guru Sandipani made him realize what is the purpose of his life, first of all he left Vrindavan, never again came back. Never again came back to see any of Beautiful the flute music is running on background. girls or boys of his area. That was the end of it. At 16, he left. When he was leaving, today if we say Krishna, we say Radhe Krishna. Radhe comes ahead of Krishna because their love, their intimacy, their romance caught the imagination of a whole culture in the entire subcontinent in such a way that we don't say Krishna Radhe, we say Radhe Krishna. But at the age of 16, he saw her for the last time and never again saw her. And at the age of 16, when he was ये leaving, तो बिल्कुल मालूम है। he said, I played this flute for you. Now I'm going and not coming back. So, as an offering to you, for the love that you are, I'm going to give this flute to you.
and never again play the flute again, and he never again played the flute. From then on it was Radha who played the flute. He never played flute after 16. From 16 to 21, he lived as a brahmachari. He took sannyas, lived as a brahmachari, went through severe sadhana. After that, his entire life was committed to marry political life, political process and the spiritual process. Well, it ended up in a disaster, but he did everything possible. These things are never spoken of. In the northern plains of India, he set up over 1,000 ashrams because Wow. he wanted spiritual process not to be a separate thing. He wanted spiritual process to be a part of life. As we live, Yeah. as we brush our teeth in the morning, we meditate. He wanted to bring spiritual process not as a fringe thing, but as a mainstream life, particularly Something that comes to the rulers naturally, of the part country, of our life. of those many countries that India was at that time. His mission was to spiritualize the political process of the day. So obviously, those days, political process was not a democratic process. So he thought, the most important thing is, if the leadership gets it, then the benefit will naturally come to the people. People who handle other people's lives, for example, a king or a prime minister or a president of a country today, or even a CEO of a company because they have hundreds of thousands of people under them, once you have such a responsibility, then every thought that you generate, every emotion that you generate, every action that you perform impacts millions of people's lives. When you have such a responsibility, it's very important you're in a good state. What you think, what you feel must be coming from a certain inner space which will work for everybody's well-being. If I have a narrow view of life, every thought that I generate will damage people's lives, every emotion that I have will damage people's life, actions that I perform and especially actions that I do not perform, which I'm supposed to perform, will cause immense damage to people's lives, isn't it? So he focused only on leadership. He wanted the kings of the day to turn spiritual. Unfortunately, it ended up in a disaster of Kurukshetra, a terrible war which wiped out, an entire generation of men, literally. But still we worship him. Everything that he wanted to create failed with Kurukshetra war. That's one thing he desperately tried to avoid is that war. But the most terrible war happened, and even he, his own clan, all fought among themselves and killed themselves. But we call him Lord, because through all this he was playful, untouched by a terrible reality, a terrible drama that's playing around you, but still untouched. So this we are saying, Lord, this you can also do, isn't it? Whether you are going to become the biggest success in the world or not is subject to many realities. But are you a successful human being? That means, are you able to conduct your life consciously, or if life pokes you, will you become an animal? This is the question. Very basic question. This one question, if you successfully handle, you also we will call you Lord. Yes? मुझे सद्गुरु जी की हमेशा से ही पसंद आती है वो ये कि वो समझाते बहुत ही अच्छी तरीके से है, और वो इसीलिए समझा पाते हैं क्योंकि उनके खुद के पास जो है वो उसका नॉलेज है, उनके खुद के पास उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ उसका जो समझने की जो बात होती है कि आप बिटवीन द लाइन्स जो रीड कर सके वो उनमें समझ है। और लॉर्ड कृष्णा की बात करें, उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें जो शेयर की जो शायद हमें मालूम नहीं थी। लॉर्ड कृष्णा अगर बात करें हम लोग की, एक अपने आप में एक जनरेशन्स को उन्होंने मोटिवेट किया, इंस्पायर्ड किया है। आज भी इतने सालों के बाद भी शायद 5000 साल या उससे आसपास हुए होंगे उनको इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिए हुए, लेकिन आज भी हम लोग उनको उतना ही याद करते हैं, उतना ही वर्शिप करते हैं। शायद
पहले जितना करते थे उतना ही। सो लॉर्ड कृष्णा की बात करें, उनकी बचपन से लेके उनकी एक तरह से आखिरी लाइफ तक की एक पूरी जर्नी रही है। और हम जब भी याद करते हैं, बिल्कुल सही कहा सदगुरु जी ने कि हमारे मन में एक नटखट कृष्णा की इमेज आती है, जो मक्खन से खेल रहा है, जो गोपियों के बीच में है, जो गायों के बीच में बांसुरी बजा रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करी। उन्होंने कहा कि लॉर्ड कृष्णा जो है वो 6 से 8 साल के बाद उन्होंने मक्खन जो है वो छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि राधे कृष्ण हम लोग बोलते हैं, आई थिंक इट्स अ कल्चर ऑफ इंडिया that we say Siya Ram or Sita Ram before say Ram Sita. Similarly it goes like Radhe Krishna as well. लेकिन उन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट किया कि 16 साल की एज में उन्होंने आखिरी बार राधा को देखा था। उसके बाद उन्होंने कभी नहीं देखा। और तब उन्होंने अपनी जो बांसुरी है वो राधा को दी थी एज ए गिफ्ट ऑफ लव, और कहा था कि उसके बाद ये बांसुरी मैं ज़िंदगी में कभी नहीं बजाऊंगा। और उन्होंने कभी नहीं बजाई। ये सदगुरु जी ने हमें बताया। मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। मुझे लगा कि उनकी आखिरी वक्त तक, जब तक वो रहे इस दुनिया में, वो बांसुरी ज़रूर बजाते थे, उनकी एक प्रिय चीज़ थी। लेकिन वो हमें मालूम चला उसके बाद उन्होंने कहा कि 16 साल या उसके एज के ऊपर उन्होंने वृंदावन को छोड़ दिया और फिर वापस वृंदावन कभी नहीं गए। तो एक बहुत ही इंटीमेट जर्नी रही है लॉर्ड कृष्णा की, और बहुत ही इंस्पायरिंग भी रही है। बिकॉज जैसे कि कहा कि कुरुक्षेत्र का वॉर जो है वो काफ़ी एक तरह से डिफिटिंग भी था, और एक तरह से अब वो जो पूरी स्ट्रेटजी थी वो उनकी वहीं पे रह गई थी, और इसीलिए उनको रणछोड़ कहा जाता है, क्योंकि उनको वहाँ से निकलना पड़ा और आके द्वारका में रहना पड़ा। क्योंकि मैं गुजरात का हूँ तो मुझे द्वारका का महत्व मालूम है। बहुत ही खूबसूरत नगरी है, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, और बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन भी किया है वहाँ की अथॉरिटी ने। सो लॉर्ड कृष्णा उनकी ज़िंदगी जो है वो एक तरह से हमारे लिए सीख है। उन्होंने जो गीता के अंदर बात करी, उन्होंने जो महाभारत में जो भी अर्जुन को अपनी एक तरह से वॉर स्ट्रेटजी सिखाई, और जो छोटी छोटी बातें हैं, चाहे वो जीवन के एक छोटे से हर पहलू की बातें हैं, वो लॉर्ड कृष्णा से सीखने को मिलती है। एक जो इस वीडियो के ज़रिए बात पता चली कि 1000 आश्रम जो है वो उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे पूरे भारत के अंदर। क्योंकि उस वक्त भारत था, इंडिया नहीं था, तो हम लोग भारत ही कहेंगे। और मुझे भी पर्सनली भारत नाम जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो 1000 आश्रम उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे, और उसके साथ साथ उनकी कोशिश जो ये थी कि उन आश्रम के अंदर जो प्रैक्टिस हो हमारे धर्म की, रिलीजन की, वो ऐसा ना हो कि कोई फोर्सफुल है या एक प्रैक्टिस के रूप में हो। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ की जैसे आप डेली में अपने काम करते हो, उसी तरह से रिलीजन या धर्म जो भी उसका एक हमारी पूजा का जो भाग होता है वो एक नेचुरली तरीके से आए। और एक बात जो आखिर में कही कि कुरुक्षेत्र का वॉर जो है वो हार गए थे कृष्णा, लेकिन आज भी हम उनको लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने वो जो लीडरशिप क्वालिटी है वो मेंटेन की। उन्होंने बताया, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि आप हार जीत के बारे में ना सोचे, आपको सोचना है कि आप अगर लीडर है तो आपकी जो एक्शंस है वो काफ़ी लोगों के ऊपर जो है वो डिपेंड रहती है। काफ़ी लोग उससे अफेक्टेड भी रहते हैं एडवर्सली और पॉजिटिवली। सो आप कोशिश करें कि आप उन सबसे ऊपर रहे और अपने अच्छे स्टेट ऑफ माइंड से जो है वो सारे डिसीजन ले। ये तो आई थिंक एक ऐसी सीख है जो हम सबको हर जगह, हर डगर में काम आएगी। हर जगह आई थिंक हमें इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। सो इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल की बातें करी सदगुरु जी ने। काफ़ी अच्छा एक स्पिरिचुअल वीडियो था। मुझे इसीलिए सदगुरु जी के वीडियो देखना पसंद है। आई एम श्योर आपने भी इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया होगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कि इस वीडियो में आपका कौन सा पार्ट अमेजिंग था। मुझे तो वो सरप्राइजिंग लगा कि उन्होंने जो मक्खन की बात करी, बांसुरी की बात करी, कि उसके बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी बात जो है वो सरप्राइजिंग लगी या अच्छी लगी। लॉर्ड कृष्णा की आपको कौन सी बात जो है वो पसंद आती है। सो गाइस, इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। आपके पास अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट्स हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और साथ में अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो रिकमेंडेशन है जो आप चाहेंगे कि मैं रिएक्ट करूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हो सके तो वीडियो का लिंक भी ज़रूर भेजिएगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड रिएक्टिंग ऑन दिस वीडियो। यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली। आई विल सी यू अगेन। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।